بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور شو گپ شپ. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عرشیہ حسین. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست ثنا قادر. اور میں ہوں انم گوہر. My name is یونس خان اور میں خالی ہاتھ نہیں آیا. نہیں, آپ وکیل لگ رہے ہیں آج, اور فائلیں بھی ہیں. اگین دیکھیں, جب بھی کوئی حکومت چینج ہوتی ہے وہ IMF کی طرف جاتے ہیں. جی میں بھی وہاں گیا اور یہ ثبوت لے کر آیا ہوں. میں پچھلے 70 سالوں کا ریکارڈ ہے اس میں. واہ واہ واہ. کس نے کتنا لیا آج میں پروف کروں گا. فائنلی جو آج کی لسٹ ہے وہ ٹھیک ہو. بالکل بالکل. اور آج میں پروف کروں گا کہ پاکستان اگر قرضے میں ڈوبا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے. I'm curious to know. Let's start this. میں تھوڑا سا بتا دوں. جی جو ہماری ایکسٹرنل ڈیپتھ ہے پاکستان کی, کتنا قرضہ ہے, وہ ٹوٹل ہے 14.814 ٹریلین روپیز. IMF سے ہم نے کتنا قرضہ لیا ہے, دیٹ از 1.188 ٹریلین روپیز. افسوس کے ساتھ اب میں بتا دوں کہ ٹریلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں. اب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں سیکھا ہے. 9 تو زیرو ہو گئے, اس کے بعد 1188 ہے. یونٹ 10, 100,000, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 100 ارب, خرب, 100 خرب سے بھی اوپر ہے. ختم ہی ہو گیا. 100 خرب سے بھی اوپر. ایک ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں اور ایک خرب میں 100 ارب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سعودی والے ارب نہیں آ رہے, یہ اصل والے ارب آ رہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان جب نیا 9 سال کا ہوگا, 9-10 سال کا ہوگا, پہلی بار ہم گئے IMF کے پاس. ایوب خان صاحب اس ٹائم حکومت کر رہے تھے پاکستان پہ. تو 1958 8 دسمبر $25 ملین لیے. $25 ملین, ملین بتا دوں, 1 ملین میں 10 لاکھ. یو ڈو دا میتھس. ٹھیک ہے جی. پھر 65 میں گئے. 65 میں ہم نے 37 ملین اٹھائے, مطلب مانگے. پھر 69 میں گئے 75 ملین. 72 میں گئے 75, 73 میں گئے 75, اور 74 میں ہم نے جمپ کیا 87 ملین روپیز لے کر آئے. اور 1984 میں $350 ملین لے کر آئے ہم. ترقی دیکھ رہے ہیں, ترقی دیکھ رہے ہیں ہم. ہلکا نہیں آ رہے پاکستانی. ٹوٹل جو ڈیپتھ ہے پاکستان کا وہ ہے, اگر ہم ڈالرز میں کہیں تو $118 بلین, $118 بلین. اور اگر ہم اس کو پاکستانی میں کریں تو ٹریلین, 1.188 ٹریلین. ایگزیکٹلی. میں یہ بتا دوں کہ بولا بھی نہیں جا رہا تو قرضہ اتاریں گے کیسے. جلدی سے آپ کا اوپینین چاہیے, اسٹارٹنگ فرام ثنا. جی اس بارے میں جو ہم مقروض ہیں, اس بارے میں آپ مجھے بتائیں کیوں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہم کیوں ہیں, یہ سوال تو آپ ہٹا ہی دیں کہ ہم کیوں ہیں. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ ہم ہیں, اور یہی ہے کہ ہم ہیں. لیکن ہم نے جو اگر میں بات کروں 61 سال سے جو ہم نے قرضہ لیا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرضہ کبھی نہ IMF کو دوبارہ ریٹرن نہیں کیا گیا. سمجھ رہے ہیں آپ, مطلب اگر میں نے عرشیہ سے قرضہ لیا تو میں نے انم سے قرضہ لیا, عرشیہ وہ قرضہ دے دیا. اب میں مقروض ہوں انم کی. اسی طرح اب انم جب مجھ پہ آ گئی شرائط لگانے کے لیے تو میں نے یونس سے قرضہ لیا, میں نے انم کو دے دیا. تو ایسی میں ہی جو ہے وہ ہمیشہ سے مائنس میں چل رہی ہوں یا میں ہی خراب چل رہی ہوں. ابھی افسوس کے ساتھ ایک ہی چیز بتاؤں گی جو کہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں اس پر غور و فکر کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اگر ہمیں 300 ارب نہ دیتا تو آج ہمارا ملک خسارے میں چلتا, یعنی ہم میں افغانستان میں کوئی فرق نہ رہتا. ٹرو. بٹ بیفور دیٹ یونس, میرے ذہن میں ایک سوال ہے. میں تو چاہوں گی کہ اس کا جو, کیونکہ آپ اتنے سارے ریکارڈ بریکنگ ان کے سچ لائیں, ریویل کریں گے, پہلے آپ مجھے بتائیں یہ بات کہ IMF خود کیوں بینکرپٹ نہیں ہو سکتا. اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے اور دیے جا رہے, بٹ لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا نا, نیور اینڈنگ پیسہ. وہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کا سورس کیا ہے؟ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. امریکہ موسٹلی, اس میں میرے خیال سے اراؤنڈ 30% جو پورا جاتا ہے IMF سے پیسہ ٹورڈز ڈفرینٹ کنٹریز, وہ امریکہ کا 35% ہے. پھر برٹش آ گیا, پھر نیٹو فورسز ہیں, پھر کینیڈا ہے. تو سب مل ملا کے مل بانٹ کے کھا رہے ہیں. یہ تو میں نے نہیں بولا. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی تو بنتی ہے کہ ہم لیے جا رہے ہیں اور ان کو واپس ریٹرن کچھ نہیں کر رہے, اور پھر بھی اس کے بعد بھی ہماری فیور اور ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی تو کچھ وجہ ہوگی نا. ٹری لگا ہوا ہے وہاں پر, بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں. اچھا, پیڑ پہ اگتا ہے, واقعی حقیقت بات ہے. ہم دوست ملک ہیں. میں اپنا دوست ڈائریکٹر صاحب ہیں, ان سے میں پیسے لوں گا, نیکسٹ ٹائم مانگوں گا پیسے تو منع تھوڑی کریں گے کہ پہلے والا دے, کہ دوست ہے میرے. بٹ ملٹیپل ٹائمز بیک ٹو بیک, کبھی تو انسان بولتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ نہیں, پہلے آپ واپس دیں. دیٹ از اونلی بیکاز آف میرے قائد شہباز شریف صاحب کے, ہمارے ریلیشنز ہمارے کے ساتھ اچھے ہوئے. جی آپ بتائیے. جی یونس, اگر 1965 کی اگر بات کر لی جائے, جب جنگ ہوئی تھی تو تب تو لون بنتا تھا, مطلب اگر لون لیا بھی ہے تو تب تو لون بنتا تھا. اس ٹائم اکنامی تباہ ہو جاتی ہے, وار کے ٹائم پہ چلیں لے لیا. لیکن اس میں عمران خان کہاں ہیں؟ اب آئیں گے نا عمران خان صاحب پہ.
इमरान खान साहब पे ये जो पूरी फाइल है, खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि 2 पेपर्स हैं इसमें, लेकिन जो पूरी फाइल है इसमें मैं बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने कहां चोरी की। अच्छा, अब आप सुनते जाइए, मैथ्स कैलकुलेटर निकालने में आपको बता रहा हूं बहुत मुश्किल होने वाला है जी। अब जी 1988 में 273,150 मिलियन डॉलर्स का कर्जा उठाया इमरान खान साहब ने। 94 में लिया, 94 में दूसरी बार भी लिया, एक 94 में लिया 379,100 मिलियन डॉलर्स, और सेकंड टाइम 94 में लिया 606,600। मैं अपना टेलीफोन नंबर नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं जो IMF से कर्जा उठाया था 94 में दूसरी बार, और फिर 95 में 562,590 मिलियन डॉलर्स का इमरान खान साहब ने कर्जा उठाया IMF से। जी नहीं यूनिस, दिस इज कम्प्लीटली आसिडेंटरी स्टेटमेंट। या बात करें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर की, ये उन्होंने लिया था। आप कैसे इमरान खान साहब पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकते हैं? ये उनके दौर की बात है जी। उस टाइम PPP हुकूमत थी। जी, ठीक है, रॉन्ग हो गया, कोई मसला नहीं, एज ऑलवेज। नहीं एक दफा होता है। सेकेंड टाइम अब देखें, ये जो है मैं आपको बता रहा हूं 93 में वर्ल्ड कप जीत के आए नवा 93 में 265,400 मिलियन डॉलर्स उठाए। 97 में 2 बार गए, पहली बार उठाया 682,380 मिलियन डॉलर्स, और फिर 454,920 मिलियन डॉलर्स। ये उठाए हैं इमरान खान साहब ने 93 में, 97 में और 97 में। यूनिस साहब मुझे प्लीज उनका नंबर दें जिन्होंने आपको ये लिस्ट मेंटेन करके दी है। ये नवाज शरीफ साहब ने किया था। इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं, आर यू श्योर? यस जी। चलें ठीक है, लास्ट ट्राई, लास्ट चांस। इसमें मैं आपको प्रूव करूंगा कि इमरान खान साहब की वजह से ये मुल्क जो है कर्जे में है। मैं आपको बता रहा हूं 2008 में परवेज मुशर्रफ साहब गए जी, डेमोक्रेसी रवा हुई। 2008 में इमरान खान साहब ने 72,35,900 मिलियन डॉलर्स IMF से लिए। अच्छा, रुक जाए। फिर 2013 जंप 5 इयर्स, उसके बाद 2013 में इमरान खान साहब बाज नहीं आए, उन्होंने 43,93,000 मिलियन डॉलर्स का कर्जा उठाया। एंड मैं आपको बताऊं पूरे पाकिस्तान का पिछले 70 सालों से, आप कह लें पिछले 30-35 साल पे हम चले जाएंगे, इमरान खान साहब ने टोटल इंडिविजुअल जो लोन उठाया IMF से, पूरे पाकिस्तान का कर्जा उठाए, दैट इज 47%। और अभी बात खत्म नहीं होती। एंड 35% जो लोन उठाया वो फराह गोगी ने उठाया। और जो बाकी का 18% बचा वो उठाया उस शख्स ने जिसने कहा था चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए। फिर से सुनो जी। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। उस शख्स ने 18% IMF से लोन इंडिविजुअली उठाया। आपका शेर तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपकी फाइल को आग लगा देना चाहिए। मेरे दिल की बात कही है आपने, सीरियसली। इसलिए कि अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हाँ। कि आपने जो बताया 47% जो लोन आपने बताया है, और मैं 61 सालों की बात करूंगी, आपकी ही बात करूंगी। ये जी मैं आपको जो है वो एक ग्राफ दिखाती हूँ जिसके जरिए आपको पता चलेगा, हकीकत से पर्दा उठेगा, आपकी आंखें खुलेंगी कि आखिर ये 47% लोन जो है वो किसने लिया है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो 47% लोन लिया है। मैं पूरी बात कर रही हूँ आज से 2022 तक लगा दें आप, 61 सालों की मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ जब से इनकी हुकूमत आई है। उसके बाद जी 35% जो लोन है वो लिया है आपकी मुस्लिम लीग नून ने, और 18% जो लोन लिया है वो है जी डिक्टेटरशिप, यानी कि जब फौजदारी आई थी मुल्क में तब। जी यूनिस बताएं ना, अब इसका क्या करना है? बाहर फेंकना, आग लगानी, जल्दी से बताएं। देखें जी, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जी, वो इक्के का पत्ता हमेशा रखते हैं। आखिरी कार्ड तो मैंने खेला ही नहीं, ओके, अब मैं आपके सामने आखिरी पत्ता फेंकने लगा। जी, अब सुनने, आप गौर से सुनेगा, ठीक है। फरवरी 11 2022 तक का बता रहा हूं। जी, 239.2 बिलियन डॉलर्स ठीक है, पूरी दुनिया में गए IMF में। अर्जेंटीना हाईएस्ट लेवल है 40.18 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। इजिप्ट जो है 19.6 बिलियन डॉलर्स, यूक्रेन 9.8 बिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान 7.84 बिलियन डॉलर्स। ये जो सब हुआ है, ये जो सब जो जितने भी मैंने आपको मुल्क बताए हैं, ये अगर कर्जदार हुए हैं IMF के, वो इमरान खान साहब की वजह से हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले आज यूनस बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो टॉपिक लेकर आए थे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी अगर मैं कहूँ कि कसौटियाँ सुलझाई है, बहुत सारी हकीकतें वाज़े की, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। सीरियसली बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और इसी तरह आप काम करते रहिए। तो मैं आपको बताऊँ कि जो मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ या जो रिपोर्ट एक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, वो पाकिस्तानी हमारे जितने भी अवाम है वो थोड़े से ना मायूस हो गए हैं जब से ये हुकूमत आई है। तो हमें बहुत दिन से जो है मायूसी कुफर है, और आपने बहुत दिन से कोई ऐसी अच्छी खबर मुझे नहीं लगता कि सुनी है, ना मैंने सुनी थी। तो मैंने जैसे ही एक अच्छी खबर जो है वो सुनी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने अवाम के साथ जो है वो आकर यहाँ पर डिस्कस करूँ कि जी अब फाइनली जो है वो पाकिस्तान में कोई तो ऐसा इदारा है जो कि अच्छा काम जो है वो कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा भी होता जा रहा है उनकी आमदनी में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होने जा रहा है। आपको पता है कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो मील्स हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो रन करती हैं, और पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है कि ये सबसे ज़बरदस्त काम करेंगे। और अगर हम नून लीग की बात करें तो इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मील्स के हवाले से नून लीग भी बड़ी फेमस है। आप लोगों को पता ही है, उनकी बहुत है, बूस्ट करते हैं जी। जब तक खोलेंगे नहीं तब तक करप्शन भी नहीं होगी, ये उनका भी उनके लिए कहा जाता था। बहरहाल मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कि गुज़िश्ता 10 माह के अंदर जो है इस पे हम जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि 10 माह से उनको भी हुकूमत जो है वो रन करती आई है। अभी हुआ ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 10 माह से गुज़िश्ता उसमें जो है वो 26% तक उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और कहा यह जा रहा है कि अब जो है वो जिस तरह से इसी साल अगर 2022 की बात करें तो 2022 के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान की अगर एक ऐसा इदारा या एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर कर पाकिस्तान में ला सकती है, वो टेक्सटाइल होगी। सबसे बड़ी बात ये है। एक्सपोर्ट से मे बी आई एम रॉन्ग विद द फिगर, मोर देन 35 या 30% जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यूनस सही कह रहे हैं आप, मगर ये कोई और बिजनेस इतना रन हो ना हो, मगर टेक्सटाइल का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा यानी कि पीक पर है। जी बिल्कुल। एक छोटी सी रिपोर्ट है, वो भी मैं चाहूंगी कि मैं आपको पढ़ के बताऊं, क्योंकि रिपोर्ट में कोई भी कोताही जो है वो होनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 10 माह के दौरान की जो ये रिपोर्ट है उसके हवाले से बताती हूँ कि अभी रिसेंटली जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने जो बरामदात की है वो $16 अरब की है, और जो उसकी मसनूआत है जो बरामदात जिस पर की गई है, टेक्सटाइल की बात हो रही है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ गुज़िश्ता इस माली साल सिर्फ और सिर्फ 10 माह के अंदर जो है वो $12.70 अरब की जो है वो बरामदात की गई है। ये एक बहुत बड़ा जो है मैं कहूंगी कि नंबर है, 12.70 अरब। ये बहुत बड़ा है। अगर पाकिस्तान ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है तो ये इमरान खान साहब की भी इसमें कारकर्दगी शामिल है। लेकिन टेक्सटाइल के मामले में हम शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को यानी पूरी की पूरी नून लीग को कभी फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि माजी में उन्होंने जो है वो टेक्सटाइल मील्स को जो है बहुत ज्यादा उस पर काम किया है। लेकिन सवाल अब यहाँ बनता है कि जिस तरह से इस हुकूमत का नून लीग का आगाज हुआ है और वजीर आजम पहली बार शहबाज शरीफ भी बने हैं, आप लोग क्या देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि अभी 10 माह में ही अच्छी खासी बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है उसकी बरामदात में, क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कर पाएंगे, इसको ओवरऑल कंट्रोल करेंगे? कर लेंगे टैकल। मुझे उनकी काबिलियत पे पहले दिन से कोई शक नहीं था, और सबका टाइम आता है और अभी उनका टाइम आ चुका है। जिस तरीके से आप सही कह रही हैं कि पहली दफ़ा वो आए, अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि चीज़ों को किस तरीके से वो लेकर चलते हैं। बट आई गेस जिस तरीके से अपने कपड़े बेच के आवाम के लिए सारी बेसिक नेसेसिटीज़, आटा इज़ अ वेरी बेसिक नेसेसिटी, तो उसको पूरी करने की उन्होंने बात की है। तो वो रही बात दरामदात बरामदात, लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एज आई टॉक अबाउट दिस ऑन माई प्रीवियस शो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ा असासा होता है, मुल्क की इकॉनमी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अगर हमारी ये चीज़ कल एक टॉपिक लाई थी ऑलिव्स वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरह की चीज़ें हम आफ्टर ऑफ एयर भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे मुल्क में होने लग जाएंगी तो शायद जो अभी हम बल्कि मैं यूनस के साथ भी हम कितना हम कर्जे में डूबे हुए, हम जो पर्टिकुलर अमाउंट हम डिस्कस कर रहे थे मेकअप रूम में। सो अगर इस तरह की चीज़ें होने लग जाएंगी तो होपफुली ये भी चीज़ सोची जा सकती है, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि एक न एक दिन जो हम पे इतना कितने ट्रिलियंस का कर्जा है
ایک نہ ایک دن ہوپفلی ون ڈے انشاءاللہ ہم اس کو ہیل کر لیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ انم, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک انسان کو موقع ملنا چاہیے, جیسے کہ شہباز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ان کو واقعی میں پورا ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ ہماری جتنی بھی عوام ہے ان کو سیٹسفائی کر سکیں. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ تو ہمارا سیٹسفیکشن ہے کہ وہ سب سے پہلے ہونا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, مطلب اب آپ دیکھیں نا, 1 مہینہ ہوا ہے, 1-1.5 مہینہ ہوا ہے, تو اب ان کو مزید 5-6 مہینے چاہیے. جب تک وہ اپنی چیزیں اپنے پاؤں بھی جما لیں گے تو بہت جلدی سڈنلی جو ہے وہ کوئی بھی آپ فیصلہ نہیں لے سکتے. اگر الیکشن ہو گئے پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن سوال یہاں یہ بھی بنتا ہے, یونس سے میں پوچھنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ان کی حکومت آتی ہے تب تو سب جتنے بھی فگرز ہیں وہ ٹھیک نظر آتے ہیں, لیکن جو ماضی میں جو ہے وہ شوگر ملز کا حال ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا لگتا ہے اس کے بعد اب اس کی باری تو نہیں ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو لگاتے تو ہیں. ڈیفیسٹ ایک چیز ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا ڈیفیسٹ ہے وہ $1 بلین میں ہے. ڈیفیسٹ کیا ہے کہ جو ہماری پرچیزنگ ہے وہ زیادہ ہے اور ریونیو کم ہے. ٹرو. ٹیکسٹائلز از ون آف دی ایکسپورٹس, کاٹن ہے, رائس ہے, پھر آئی ٹی امپورٹس. میں کریڈٹ دوں گا آپ کے عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹس فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری آئی ٹی ایکسپورٹس بوم ہوئے. آئی ٹی ایکسپورٹس, آئی ٹی سے پیسہ آیا. آئی ٹی میں وہی کہتا ہوں کہ جو ملک ایٹم بم بنا سکتا ہے, مطلب جابز آئی ہیں. جی جی بالکل بالکل. What I'm saying here is کہ جو ملک ایٹم بم بنا لیتا ہے وہ کیا ایک سیب والا فون نہیں بنا سکتا؟ کیا ٹیکنالوجی کم ہے ہمارے پاس؟ تو وہی والی بات ہے کہ پیسج آف ٹائم لگے گا. اور شہباز شریف صاحب, شہباز اسپیڈ, ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے. 3 دن میں تو میٹرو لانچ کر سکتے ہیں, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, دیکھیں شوگر مل کا اگر آپ کوئی اسکینڈل کی بات کر رہی ہیں تو وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور ان کو بھی آپ ذرا ان کے نام لیجئے تو پھر مزہ آئے گا ثنا جی. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ جو نون لیگ کی حکومت جب بھی آتی ہے تو جو بزنس سیکٹر ہے وہ بوسٹ کرتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں خود کا بھی انٹرسٹ ہے. تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. میں اگر ہوں, میں کرکٹر ہوں, اگر میں پرائم منسٹر بن گیا تو میں کرکٹ کو بوم کروں گا. سیم گوز, عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا. پاکستان کی جو پرفارمنس تھی ٹیم کی وہ بہت اچھی رہی, بہت خطرناک رہی ہے, بہترین رہی ہے. فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کرکٹ ٹیم لگ رہی تھی. تو جو میری ایکسپرٹیز ہوں گی اسی چیز میں شاید میرا ملک جو ہے پاکستان آبویسلی وہ اس کو ایکسل کرا دوں گا. بہت ہی زبردست بات ہے, یہ بات تو ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ سب کو ہی جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہیے. آخری چیز میں بتا کر بریک کا وقت ہو گیا, وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ گزشتہ مالی سال صرف اور صرف اگر میں اس مہینے کی بات کروں جو گزر چکا ہے اپریل کے بارے میں, تو اپریل میں ہی 1.34 ارب کا جو ہے وہ اوور آل $34 ارب کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ہمارے برآمدات میں. تو اللہ کرے ایسا ہی جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب ہم اپنے شو کو آگے کریں گے کنٹینیو, اور میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں گی. اور میرا ٹاپک آج کا ایک خوشی کی خبر ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے ملک کے بارے میں کسی دوسرے ملک میں ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, ہماری ثقافت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے. کیونکہ ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں اور ہم بہت زیادہ فاسٹ فارورڈ ہو چکے ہیں لائف میں, اینڈ وی آر ویری بزی ود آر ورکس اینڈ تھنگس. بٹ دا پرابلم از کہ ہم اپنی جو روٹس ہیں, جو اپنا کلچر ہے, جو اپنا ٹریڈیشن ہے, جو بیسک ہماری تھنگس ہیں, ان سے ہم بہت زیادہ ڈسٹنٹ ہو گئے ہیں. اور ہم اس چیز کو شاید ابھی اور آگے آنے والی جتنی ینگ جنریشنز یا تھوڑے سے مزید ماڈرن بچوں کی اگر میں بات کر لوں, ہمیں تو پتہ ہے بیکاز ہم 90s کے کڈ رہے ہیں, لیکن جو بھی آگے کے بچے ہوں گے, نیکسٹ جنریشن, ایک تو جنریشن گیپس کی وجہ سے بھی ہم اس چیز کے ساتھ ریلیٹ یا کنیکٹ نہیں کر پاتے. جیسے کہ گانوں کی بات نہیں کری, گانے تو ایک نارمل مسئلہ ہو گیا. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اگر کوئی ہمیں پکڑ کے بٹھائے, اور میری جیسے آپ کی گرینڈ مدرز ہوتی ہیں, گرینڈ فادرز ہوتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کا ٹریڈیشن ہے, یا آپ کی کلچر میں یہ چیز ایسے ہوتی ہے, تو ہم اس چیز کو زیادہ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اس چیز سے گزرے نہیں ہوتے, ہم وہاں پہ وقت نہیں ہم نے گزارا. تو ایک ریلیٹیبلٹی, ایک بانڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں بنا ہوتا, تو ہم ان چیزوں کو زیادہ سمجھ نہیں پاتے اچھی طریقے سے. اب میری نظر سے ایک نیوز گزری جو مجھے بہت اچھی لگی, اینڈ آئی واز سپر گلیڈ ٹو نو دیٹ کہ ہمارے واشنگٹن ڈی سی میں, جو کہ USA کا کیپٹل ہے آپ کو پتہ ہے, اور وہاں پہ پاسپورٹ آفس میں ایک
तकरीब मुनक्किद की गई जहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज ने पार्टिसिपेट किया, ओवर 30 कंट्रीज़ ने उसमें हिस्सा लिया, शिरकत की, और वहाँ पे जो चीज़ जो सेटअप था वो बहुत ह्यूज और बहुत अच्छा खूबसूरत एक सेटअप था, और उसमें दिखाया क्या जा रहा था। और देखिए यूएसए में ज़्यादातर तो अमेरिका के लोग वहाँ पे आए, और जब मैं ये वीडियो देख रही थी, आई ट्राई टू कीप दैट फुटेज इन माई शो, अगर मुझे उसके कॉपीराइट के इश्यूज़ ना हुए, कि उसमें जैसे हम बचपन में गुड्डे गुड्डियों की शादियां करवाते थे, वो भी हमारा एक कल्चर का बहुत मेजर हिस्सा है, लेजेंड पार्ट है, हम उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। शादियां करवाना, क्योंकि वहीं से हर बच्चे को होता है कि यार अच्छा शादी भी होती है और आगे जाके मैरिजेस, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, यू नो, लाइक बचपन में वो बचपन के थॉट्स होते हैं, बट फॉर रियल चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन को लेके बताया, हमारे जो खाने हैं, खाना किसी भी मुल्क का जो होता है वो बहुत अहमियत रखता है कि हर मुल्क के अपने कुछ कुजीन्स होती हैं, कुछ खास खाने होते हैं। तो हमारे जो खाने में स्पेशलिटीज है उसके स्टॉल्स लगाए थे, एंड तो चाइनीज लोग जो है हमारे फूड स्टॉल्स में खड़े होकर खाने को एंजॉय कर रहे थे, और मेहंदी लगवा रही थी। जो इंटरनेशनल विमेन्स है, उनके बाहर की जो खवातीन है वो अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही थी, एंड जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है और क्या आपके कल्चर में इस तरह की चीज़ें हैं, या क्या आपको बचपन में आपके बच्चे इस चीज़ से गुजरते हैं, तो उनका ये जवाब था कि ये जो पाकिस्तान कल्चर है ये बहुत रिच है अपने अंदर, और इसके जितने फ्लेवर्स हैं, जितने कलर्स हैं, ये बहुत खूबसूरत हैं, ये सब हमारे कल्चर में नहीं होता, ना ही हमारे बच्चों को, बिकॉज वहाँ पे उनका एक ऐसा सिस्टम है कि औरत भी काम करती है और मर्द भी काम कर रहे होते हैं, वो हार्डली अपने बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, वो सब उनको चीज़ें सिखा पाते हैं, उनके अंदर डाल पाते हैं। तो ये जो एक सेटअप है, इस सेटअप के थ्रू जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये मिली कि इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज डिलीवर्ड बाय देयर गवर्नमेंट, कि कैसे भी आपके हालात हों और कैसे भी आपके ताल्लुकात हों बाकी ममालिक के साथ, लेकिन किसी भी मुल्क के साथ आपके जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं वो बीच में कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इस चीज़ को पसंद ही नहीं किया गया, बल्कि ये पिछले बहुत सालों से हो रहा है। शायद ये मेरे सुनने में, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पहली दफ़ा पढ़ा, तो मुझे इस बारे में अंदाज़ा नहीं था कि ये पिछले बहुत सालों से मुनक्किद हो रहा है, और ये हर साल होता है वंस इन अ ईयर। और इस सेटअप में, इस पूरे इवेंट में जो सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी, एंड यू नो जब आप बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के साथ मिंगल होते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन। सो आप लोगों का क्या टेक है इसके बारे में? बहुत ही ज़बरदस्त, सीरियसली अनम आपने ये न्यूज़ जो है वो ब्रेक की है। मैं सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता है कि किसी भी सिफारत खाने का जो है वो काम होता है कि वो क्या करते हैं कि वो दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करते हैं। अगर आप किसी मुल्क की देखिए ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तभी पैसा भी ज्यादा आएगा ना, तो ये भी समझे। तो सकाफत की जहाँ बात की जाती है तो मैं कहती हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की सकाफत है, हर रंग हमारे पाकिस्तान की सकाफत में शामिल है। बलोची कौम यहाँ पर है, सिंधी कौम यहाँ पर है, पंजाबी, पठान, पख्तून जो है वो, मतलब आपको अच्छा उनकी अलग अलग रिवायतें, उनके अलग अलग कल्चर, उनकी अलग अलग मेहमान नवाजी। तो आप अगर जाएंगे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आकर आपको लगेगा आप कहाँ आ गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको हर तरह का जो एक मैं कहती हूँ फ्लेवर है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। लेकिन अगर हम सिफारतकार की बात करें या सिफारत खाने की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो अमेरिका के अंदर, मेरे ख्याल से ये हर साल ही जो है वहाँ पर अमेरिका के जो ये ऑफिस है वहाँ पर ये तमाम तर ममालिक की जो है वो उनके कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के कल्चर को जो है वो बहुत टाइम बाद इन्होंने प्रेजेंट किया है। वाओ, वेरी नाइस। अच्छा, जितना भी देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल है वो आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, आई मीन बहुत ज़्यादा पसंद करती है, चाहे वो खाने हो गए, कपड़े हो गए, जैसे कि उन्होंने बताया चूड़ियाँ, मेहंदी, मतलब हर चीज़ उनको इतनी अट्रैक्ट करती है क्योंकि जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वो ये सब चीज़ें, यानी कि वो वेस्टर्न कपड़ों को छोड़कर पाकिस्तानी कपड़े जो है वो पहनना पसंद करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इतने सारे कलर्स हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यानी कि सेलिब्रेशन होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने अर्शिया जी। बट मैं आप बताऊं यहाँ पे कि देखें, पख्तून हो, बलोची हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, और भी हैं, माजिर हो, जो भी कौम है, हुंजा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, सबका अपना एक कल्चर है जी। और कश्मीरी, जी कश्मीरी सबका अपने कल्चर और एक कलर्स है। आप अजरक को ले लें, आप बलोचियों के कपड़ों को ले लें, आप पंजाबियों की धोतियां पहनते हैं, पंजाबी वो तो फिल्मों में पहनते थे, पंजाबी नहीं पहनते, जी पहनते हैं, उनके भी कलर्स होते हैं। ऐसी बात नहीं कि सादा धोती चल रही है, कलरफुल धोती चल रही है। बट मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कल्चर है ना ओवरऑल
गोरे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जी ट्रू। सेम गोज वो इंडिया के कल्चर को भी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, क्योंकि वहाँ पे और ज्यादा लोग हैं, और ज्यादा कौमें हैं, और ज्यादा जुबान बोलने वाले लोग हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जो गोरे हैं दे आर वेरी एक्साइटिंग। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं 3 टार्जन वाले, 4 टार्जन वाले, तो वो सब लोग इतना इंस्पायर हो रहे हैं और वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब जब वो इंटरनेशनल सोशल मीडिया स्ट्रीम पे अपनी चीजें पिच करते हैं तो और लोग आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हालात अच्छे होंगे। बट जो अमेरिका ने किया है, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब उनके दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के। आपने बोला बहुत सालों बाद रिप्रेजेंट हुआ, तो वाई अभी कड़ी से कड़ी मिलाए। शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल शर्त रख दी, उन्होंने कहा कि आप अगर अपने जो ये ऑफिस है उसमें हमारा कल्चर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो मैं आपसे कुट्टी कर लूंगा। तो अमेरिकन डर गए। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग डरते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन से, नो, अमेरिकन आर स्केयर्ड ऑफ अस। ओके यस, ठीक है। तो वो जो फोन कॉल थी जिसके लिए उन्होंने पहले ही शुक्रिया कर लिया था, वो कहीं इसलिए तो शुक्रिया नहीं किया था? मे बी नॉट, बट दिस शोज कि वो कितने हम्बल हैं। आप कॉल करें हम आपको थैंक यू कहेंगे, आप ना करें हम तब भी थैंक यू करेंगे। ये जो अप्रोच है, दिस इज वेरी नाइस। बट फॉर कल्चर रिप्रेजेंटेशन आई गेस नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत सारे ममालिक और भी थे वहाँ पे पाकिस्तान के अलावा जिन्होंने अपने सकाफत की नुमाइश ही नहीं की, बल्कि साथ साथ खराज अकीदत भी पेश किया गया और इस चीज़ को बोला गया कि दिस शुड बी कंटिन्यू आगे भी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली एक होता है ना वन स्टॉप शॉप के एक ही जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग भी मिल रहे हैं एंड वहाँ से आपके जब टूरिस्ट आ रहे हैं तो इकोनॉमी भी रेज हो रही है और आप अपना एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी कर रहे हो और उसके बाद आपको वहाँ से और भी बहुत सारी लव स्टोरीज भी बन सकती हैं। होने को बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे चांसेस हैं। बट दिस वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमने वहाँ पे अपने कल्चर को एक्सचेंज किया और रिप्रेजेंट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से हम बाकी ममालिक में भी अपने मुल्क के झंडे गाड़ते रहें और लोगों को इंस्पायर और इम्प्रेस करते रहें। यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हुआ है। आप लोगों को पता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर फास्टेस्ट तरीन जो है वो ट्रेन चलती है? आई नो, मुझे पता, शंघाई मगलेव। नहीं, ये गलत है। आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर। जी, पटरी पे। चीन में। ये पटरी पे भी नहीं चलती। चीन में नहीं। ऑस्ट्रेलिया? नहीं यूनुस, ये चीन पे नहीं चलती, क्योंकि मैंने तो सुना था चीन नहीं, चीन में नहीं चलती, ये जापान में चलती है। अच्छा, इसका मैं आपको नाम बता दूं कि L0 सीरीज जो है वो मैगलव है इस ट्रेन का नाम, और ये बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि आप समझ लें कि हवाई जहाज की तरह जो है ये तेज है। ठीक है, मतलब आप सोचोगे कितनी स्पीड होगी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कितनी स्पीड होगी? 602 किलोमीटर पर आवर जो है ये चलती है ट्रेन। तो आप हिसाब लगा लें कि बहुत ज्यादा जो है ये तेज है। मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा और आसान कर देती हूँ। लेट्स सपोज ये पाकिस्तान में है तो कराची टू लाहौर जाना है तो आप 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। ना करें। जी, ये मतलब इतनी तेज है ये। सारी एयरलाइन बंद हो जाएगी, बता रहा हूँ। You can't see anything while running the train. ना कुछ भी नहीं दिखेगा। You can see How? Gravity. This is gravity. It's a big debate. ब्लरी इमेज होगा ना, जितनी स्पीड पे वो बता रही हैं। अगर हम 2 घंटे में कराची टू लाहौर का सफर तय कर सकते हैं तो उतनी देर में हमें जो बर्ड्स, अगर मैं परिंदों की बात करूं, जो हमारी आम ट्रेन जब बहुत तेज रफ्तार में जाती है तो हमें फिर भी उस तेज में भी हमें एक चीज का क्लैरिटी आ रहा होता है कि ये घर है, ये कौवा है। आई कैन से कि मैं चिड़िया और कौवे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी। यू होंगे ना हम लोग। नहीं ऐसा। जी। आपने जहाज पे ट्रेवल किया? यू ट्रेवल फ्रॉम कराची टू लाहौर इन 2 hours जी। एंड व्हेन यू सिटिंग ऑन अ प्लेन यू कैन सी you can see the birds around you, you can see people around you. So it's about कि आप जब बैठे जहाज में तो हमेशा लगता है स्टिल खड़ा है वो। तो exactly I never that feel anything. स्पीड है वो, ये साइंस है। जी मैं आपको बताती हूँ। नहीं, जो ये ट्रेन है बेसिकली ऐसी ही है जैसे जहाज है। आपने जहाज में बैठे, आपको फील होता है कभी कि जहाज चल रहा है, कोई चीज हिल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर मौसम खराब है तो तब आप लोगों को पता चलता है कि थोड़ा सा जहाज हिल रहा है और खाने पीने एग्जैक्टली, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी में आप बहुत सुकून से बैठेंगे, बहुत सुकून से जो है वो आप सफर कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी स्पीड से कैसे यानी कि काम कर रही है, यानी कि 602 किलोमीटर पर आवर कैसे चल रही है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और मजीद वजाहत कर देती हूँ। इस ट्रेन की प्रोपल्शन जो है वो पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट पर है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर बहुत जल्दी जो है वो स्पीडली पहुंच जाती है। तो सर डिफाइन करें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट, व्हाट इज दैट?
जी यूनस, मैं नया मार्केट आया, नया मैग्नेट आया मार्केट नहीं यूनस, जैसे मैंने अपनी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को नाम बताया था कि L0 सीरीज मैगलव है, ठीक है। मैग्नेट लेविटेशन जो है ये एक प्रिंसिपल है, खुद का अपना एक प्रिंसिपल है, ये ट्रेन को खुद से कंट्रोल कर रहा होता है। ओके 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 ठीक है, यानी नेविगेट कर रही है। जी अच्छा, मैग्नेट फोर्स की तरह जो है ये काम कर रही होती है, जिस तरह Exactly. मैग्नेट अगर आप देखें ना आपस में किस तरह से कशिश करके जो है उनकी कुव्वत काम करती है, इसी तरह काम कर रही है। बिल्कुल सना, जी। आपने बहुत अच्छे से समझा है कि ये वाकई में जो है ये मैग्नेट जो है वो लेविटेशन है, यानी कि ये हवा में फ्लो करती हुई ट्रेन जाती है। लेट सपोज आप लोग गाड़ी में बैठे हैं और वो रोड पे चल रहे हैं टायर, ठीक है, वो घसीटते हुए जब वो जा रहे होते हैं उसकी स्पीड इतनी नहीं होगी, जब वो फ्लाई कर रही होगी ना उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये ऑटोमेटिकली अपनी पहले ग्रिप बनाती है, फिर उसके बाद ये फ्लो में चलती है। सो इट विल सडनली गेट वेनिश्ड, आपको नजर भी नहीं आएगा। मैग्नेटिक कोलाइड आपको पता है कितना ज्यादा तेज होता है, यू जी। कैन नॉट इवन इमेजिन कि वो एकदम कैसे डिसअपीयर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अनम जी, आपने सही बताया। मुझे पता था, मैं आप लोगों का टेस्ट लेता एंड यू ऑल पास्ड, कांग्रेचुलेशंस। ओहो। यस, सो प्लीज स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। यस प्लीज जी उषा जी जी कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, अनम ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके वाकई में टायर नहीं है और ये बिना टायर के चलती है, क्योंकि ये जो ग्रिप है सिर्फ और सिर्फ फ्लाई कर रही होती है, यानी कि फ्लोट कर रही होती है। इसका मतलब ही यही है, मैग्नेट लेविटेशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट है बेसिकली। तो इसको जो है वो जैसे कि आपने बिजली दी किसी चीज को तो मैग्नेट के साथ ऑटोमेटिकली ये काम करना स्टार्ट कर देगी, और ये रेगुलर ट्रेन से ज्यादा जो है वो स्पीड पकड़ती है। देखें इसकी जितनी भी स्पीड हो, आई एम सेइंग 602 किलोमीटर्स पर आवर, it can be 702 kilometers per hour, it can be 1000 kilometers per 2 hour, but ये स्पीड कम है मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब की शहबाज स्पीड से। yes. मगर यूनस देखिए ना कि ये ऐसी ट्रेन है, यानी कि आपको कहीं जाना है 2 घंटे में आप, जैसे कि कुछ लोग को जब आप जहाज में बैठते हैं प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है, आई मीन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि जहाज में नहीं बैठ सकते, तो इस ट्रेन में बैठ जाए, पता भी नहीं चलेगा आपका 2 घंटे में आपका सफर पार हो जाएगा। ये एक सवाल है कि देखें ये जापान में ये अभी एक ट्रेन आई है जी। या होगा काफी सालों से है, मगर ये है कि इसको जो है अब बहुत ज्यादा रूट एक्सपोज बड़ा कर करना, दिया। जी एक्सपोज करना जो Okay. है वो ज्यादा उन्होंने शुरू कर दिया ताकि लोगों के अंदर ये टेक्नोलॉजी की बात जो है वो स्प्रेड हो। जी। आई थिंक कि जापान जो है हाँ बहुत दे आर वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, एंड डू यू नो दैट कि वहाँ पे एक दफा 30 सेकेंड्स जो है जो एक ट्रेन थी वो लेट हुई थी, जी। तो जो टीसी कहते हैं टिकट चेकर होता है उसने और विद द कैप्टन उसने सबसे माफी मांगी जापानी स्टाइल में, यू हर पैसेंजर से माफी मांगी जस्ट फॉर गेटिंग लेट फॉर 30 सेकेंड्स। और हमारे यहाँ क्या होता है जानी लड़ाई होती है। जी जी जी, और हमारे यहाँ मसला एक मैं लड़ाई आपको होती बताऊं, जो एक टर्मिनोलॉजी है उसका भी मसला है हमारे यहाँ। जैसे पूरी दुनिया में बोला जाता है कि आप कितना दूर है, जैसे अनम जी आप कितना दूर हैं, यूनस मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ, मैं 3 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ उल्टा है, जानी बस 10 मिनट, जानी बस 5 मिनट। आई डोंट नो टाइम के थ्रू आप कैसे बता रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है जी। बट चाइना हैज हाफ ऑफ द 8 फास्टेस्ट ट्रेन्स और Exactly. ऑलमोस्ट उनका जो रेलवे का नेटवर्क सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। बट आखिरी चीज मैं बहुत भी इसमें strong. ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि अभी रिसेंटली ये जो ट्रेन है आपने कहा चलती हुई आ रही है और ये चल रही है, लेकिन अभी चाइना ने जो है, जो मैंने आपको बताया था कि आप 2 घंटे के अंदर पूरा सूबे से जी, जी, सूबे जी, नहीं आप बल्कि ये मुल्क से topic- मुल्क आप रॉकेट की स्पीड पे जो है वो सफर जी, कर जी, जी, सकते the plane. हैं, वो चाइना ने जो है वो बनाई है, लेकिन अभी तक जो है वो उसको ऑफिशियली इस तरह से स्टार्ट नहीं किया गया। जैसे ही उसे ऑफिशियली स्टार्ट किया जाएगा देन चाइना नंबर बना तो जाएगा। वो तो प्लेन है ना, दिस इज अ ट्रेन। नहीं इसकी वो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड वो इतना हाँ। होगा मैक्स, या इतना होगा, हम्म। बट जहाज तो फिर 14,000 15,000 16,000 किलोमीटर दूर जी। होता है। बट जो चीज न्यूयॉर्क से मॉन्ट्रियल लेस देन 1 आवर में चली जाएगी वो क्या होगी? क्या होगी वो? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम, और ये टॉपिक लाने का मकसद ही यही था, आप लोगों को अवेयर करूं और ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ स्प्रेड करूं, और उम्मीद करती हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी का जो टाइम हुआ है वो है वॉइस मैसेज लेने का। देखते हैं जी कौन और कहां से। अगर हमारे शो का आपको हिस्सा बनना है तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। देखते हैं जी कौन और कहां से। सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कराची से शफीक बात कर रहा हूँ जी। गपशप शो बड़ा ज़बरदस्त है, हम मिल के सारे लोग देखते हैं अपने घर पे।
अच्छा, मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाहूँगा आप लोगों से कि दुनिया क्या कहती है, पाकिस्तान के सारे लोग, तमाम आवाम कहती है कि गवर्नमेंट करप्ट है, यहाँ के इदारे करप्ट हैं, चीज़ें करप्ट हैं। तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि कौन से ऐसे 2-3 इदारे बता दें जिनके सही हो जाने से ये मुल्क सही हो जाएगा, या तो इसका निज़ाम सही से चलना शुरू हो जाएगा। तो काइंडली मैं चाहता हूँ कि आप अपने शो के ज़रिए लोगों तक ये बात तो लाज़मी पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शो को इसी तरह चलाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये तो साहब बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं और इनके बारे में आप लोग प्लीज़ जवाब दें कि क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी लेयर, जो वो कौन सी सतह है जो ठीक होगी तो ये पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से 2-3 इदारे हैं वो ठीक हो जाएं तो मुल्क ठीक हो जाएगा। जी हाँ, कोशिश करने दीजिए। अल्लाह मेरी माँ मैं बोल सकता हूँ माँ। छोटी बच्ची हो वो क्या? कौन अल्लाह से यूनुस को बचा लो, या अल्लाह यूनुस को बचा लो। वो कौन से 2 इदारे हैं पाकिस्तान में, अगर वो ठीक हो जाएं तो मुल्क ठीक हो जाएगा? वो 2 इदारे हैं, मुझसे नहीं होगा। छोटे बच्चे हो क्या? बताओ ना। देखिए पार्लियामेंट ठीक हो जाए। देखिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, सिर्फ 2 नहीं है, बहुत सारे इदारे हैं। मैं सबको लपेटूंगा। ये देखिए बिजनेस कम्युनिटी भी है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं, अगर हम वाटर सीवरेज वाले कहते हैं तो करप्शन तो हर जगह, करप्शन हर इदारे में। आप जो हेड है और चपरासी से लेके हर बंदा ऑलमोस्ट करप्ट है। जो अच्छे लोग आते हैं, जो काम करना चाहते हैं विदाउट एनी करप्शन, उनको वो टिकने नहीं देते, बिकॉज लॉबी है। पुलिस में ले लें आप, है, लेकिन हम उससे ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पूरा करप्ट है। कुछ लोग हैं कुछ इदारों में अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, वो करप्ट हैं, उसकी वजह से पूरा इदारा चाहते ना चाहते करप्शन को परस्यू करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ना काम ना छोड़ें, अगर आप हक और हलाल से कमाना चाहते हैं तो कीजिए, एंड डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। आप अपना काम ईमानदारी से करें। विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान विल रूल दिस वर्ल्ड वन डे, इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इस पे एक चीज़ कहूँ, आपका बहुत सीरियसली बहुत 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 अच्छा जो है वो आपका सवाल था, और मुझे लगता है कि जब तक हम खुद आवाम जो है वो इस मुतालिक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इदारे की बात की आपने, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक इदारे को मैं माइनस करूंगी और दूसरे इदारे पर आऊंगी, वो है काबीना। अगर काबीना जो है वो दुरुस्त हो जाए, या काबीना नहीं कर रहे थे जो आप काबीना बोल रही, चले आगे। लेकिन अगर काबीना जो है वो ठीक हो जाए बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है और एक दूसरा इदारा भी ठीक हो जाएगा। खैर जी 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 जी, मगर ऐसा ना वही बात है कि आप ना डायरेक्टली यानी कि गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि वो हमारे सारे जो है वो मसले हल करे। हमारा भी कंट्रीब्यूशन है कि अगर हम कोई भी चीज यानी कि बैलेंस होके चलेगी। लेकिन हम इदारा थोड़ी है, हम इदारा थोड़ी है। इदारे लोगों से तो बनता है। हाँ, लेकिन इदारे हुकूमत से बनते हैं। नहीं, हाँ, मैं बताती हूँ आपको। हुकूमत में क्या एलियंस बैठे हैं, आवाम से। अरे आप समझे नहीं। देखिए, पानी की बात होगी, कचरे की बात होगी, ओवरऑल मतलब जो भी आप कोई भी मुद्दा उठा लें तो उसकी अगर हम बात भी करते हैं तो वो हमारा भी काफी हद तक जो है वो काम बनता है कि हम उस चीज के ऊपर जो है वो ठीक तरीके से चलें। लेट्स सपोज अगर आप गवर्नमेंट की अगर आप बात भी करते हैं तो चले 50% उनका है तो 50% हमारा भी तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि आपको भी ठीक होना पड़ेगा। मतलब आप कह रही हैं कि इदारों को दुरुस्त करने से बेहतर है कि आप अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है सना। चले इदारे तो जी शायद हमें देख देख के ठीक हो जाएं। हाँ, क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात करते हैं, पहले बात करेंगे जरूर जी। वो ले लें, इनपुट ले लें जी। ओके, यस यस प्लीज। तो आई वुड लाइक टू से कि 2 इदारे, you can keep the count on 2 3 4 5 6 7, मतलब it could be multiple इदाराज जिनको सही होने की ज़रूरत है, जिनको अपने उनका देखिए काम तो इदारे कर रहे हैं लेकिन सही से नहीं कर रहे, ईमानदारी से नहीं कर रहे। जिस तरीके से उनको काम और अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैसे नहीं अदा करे, बट दे आर उसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी हर चीज़ चल रही है। बट जो एक वो होता है ना कि ये मैं एक इदारे में, जैसे अभी मैं अपना होस्टिंग करती हूँ, मैं आती हूँ ऑफिस और मुझे अपना 100% इनपुट देना है। क्यों? क्योंकि मुझे आई गेट पेड फॉर इट और ये मेरा काम है, और मुझे आके आप लोगों से बात करनी है, कुछ ना कुछ मुझे बताना है, शेयर करना है। सो दिस इज़ माई जॉब एंड आई विल डू इट बिकॉज मेरे कंधों पे इस चीज़ की जिम्मेदारी डाली गई है। तो
آپ نے جو بولا ہے کہ یہ کوشچن تو دیکھیں میرے جو بھی ڈیئر رسپیکٹفل بھائی آپ نے اس کا جواب آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا. ہاں مے بی آف دا کیمرا اگر آپ مجھے کہیں پہ اس بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو گرواؤں گی, لیکن دیکھیں کبھی بھی آئی ہیو لرنڈ ون تھنگ ان مائی لائف کہ آپ اپنے ملک کے بارے میں ٹھیک ہے مانا ہے بہت ساری چیزیں کمیاں ہیں خامیاں, لیکن ہم اس کو اگر لیٹس جسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ دس, اور اگر ہم اس کی اچھی باتوں کی طرف بات کریں, اچھی چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ اگر میں ہی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہوپ لیس ساؤنڈ کروں گی تو آپ وہاں سے بہت زیادہ بیڈلی انفلوئنسڈ ہو جائیں گے, اور آپ آگے 10 لوگوں میں بولیں گے کہ کیونکہ ٹی وی والے لوگ بہت ایک اپنا ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. جی سو پورے ملک کی کو چینج کرنے کی ذمہ داری بھی اگر ہم چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک انسان بھی کسی چیز کو چینج کرنے کی سوچ رکھے گا تو وہ جو سوچ ہے وہ پھیلتی جائے گی 1 سے 10 سے 100 لوگوں میں, اور اس طرح سے آپ آہستہ آہستہ کر کے تبدیلی لا سکتے ہو. لیکن ایک دم سے آپ بولو کہ اوور نائٹ چینجز آ جائے تو وہ تو کبھی بھی نہیں آتا ہے. اینڈ آلویز ٹرائی ٹو میک اپ پروگریس ان یور انڈیویجول کیپیسٹی, دس از اٹ. ابھی وی ور ڈسکسنگ, جیسے آپ کا انپٹ بہت اچھی بات کی آپ نے, بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ آپ کیا سوچتی ہیں جب عرشیہ جی نے کہا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ادارے ٹھیک ہو جائیں گے. واٹس یور ٹیک ناؤ, آئی وانٹ ٹو لسن یو. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا وہ عرشیہ جی کے جو سوال تھا یا ان کا جو ان پٹ ہے اس کو تھوڑا سا ہم دوبارہ لاتے ہیں. وہ ہے کہ عرشیہ نے یہ کہا کہ ادارے ٹھیک ہونا ہو عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ادارے ٹھیک ہونا ہو عوام کو ٹھیک ہونا چاہیے, آٹے کی قیمت پیٹرول کی قیمت کیا عوام ڈیسائیڈ کرے گی یا ادارے ڈیسائیڈ کریں گے؟ یہ میرا جو ہے نا وہ بیسک مدعا ہے. کرپشن عوام پکڑے یا ادارے پکڑے, حفاظت اگر سیکیورٹی کرنی ہے ملک کی ادارے کریں گے یا عوام خود سڑکوں پہ نکل آئے گی ٹھیک کرنے کے لیے؟ میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ جی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, تو ہم کیا کچھ کم کر پائے ہیں؟ نہیں نا. تو پیٹنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سیٹ کر. تو یہی مدعا یہی ہے کہ صرف ایک انسان نہیں, یہ دو ٹیمز ہیں, عوام اور حکومت. یہ آپ نے بولا ان دونوں کو اپنا ایکول پارٹیسپیشن دینا پڑے گا تو ریزلٹس آئیں گے. صرف ایک صحیح ہو جائے دوسرا نہیں صحیح ہوگا تو اٹ وڈ ناٹ میٹر. مگر دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مگر ایک بندہ روتا رہے اور ایک بندہ مزہ کرتا رہے, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز اگر گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی تو ہم اپنا کام کر لیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ ٹھیک ہے ہٹا دیتے نا, جمہوریت کیوں رکھی ہے؟ جمہوریت ہٹاتے ہم یہاں پر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جو کنگزم لگا دیتے ہیں نا, یہاں پہ کنگزم چل رہی ہے تو ہم یہ لگا دیتے ہیں, مونارکی سسٹم چلے گا یہاں پہ. I want to say دیکھیں ہم لوگ ایز اے عوام ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں سارے ادارے نکالنے پاکستان کے 50 ادارے ہوں گے 100 ادارے ہوں گے, ٹھیک ہے 100 ادارے ہم کہتے ہیں, اس میں کتنے لوگ ہوں گے 2000, چلے میں کہتا ہوں 2 کروڑ 2 کروڑ لوگ پاکستان کے سارے اداروں میں. عوام کی پاپولیشن کتنی ہے 22 کروڑ. تو میجورٹی آلویز ون. اگر اچھے لوگ ہی آپ نومینیٹ کر کے پارلیمنٹ میں بٹھائیں گے تو اچھا کام کریں گے. جب آپ کنگ کے بیٹے کو, وہ جو بادشاہ ہے اس کو ووٹ دیں گے, پھر اس کے بیٹے کو ووٹ دیں گے, اس کے بیٹے کو ووٹ دیں گے, تو کیسے چلے گا؟ ووٹ بھی نہیں دیتے. چلے وہ الگ ڈیبیٹ ہے, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ زبردستی ووٹ لے لیتے. عوام جو ہے they have the power, they have to utilize it. آپ نے اچھے لوگ دیکھیں, میں فار ایگزامپل روڈ پہ جا رہا ہوں تو اگر مجھے کوئی پولیس روکتا ہے, ہم پاکستانی جو ہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے جب کسی پولیس کو دیکھتے ہیں تو آپ سیکیور فیل کرتے ہیں. پاکستان میں الٹا ہے, آپ پولیس کو دیکھتے ہیں آپ ڈرتے ہیں کہ کچھ ساری چیزیں پیپرز ڈاکیومنٹ سب پورے ہوں گے, سیٹ بیلٹ بھی لگائی ہوئی ہے, میں نے بائک پہ جا رہا ہوں تو ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے, پھر بھی ڈر ہے کہ روکیں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ہوتے ہیں پولیس میں بھی خراب, ناٹ ایوری ون از کرپٹیڈ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں عوام کو اب ٹائم آ گیا ہے, جو 70 سال سے اوور 70 ایئرس ہم جو ایک جنگ لڑ رہے ہیں غلامی کی, وہ آپ نے ختم کرنی ہے. وہ آزادی آپ نے واپس لینی ہے گوروں سے. اور میرے قائد شہباز شریف صاحب اس میں ایکسپرٹ ہے اور انشاءاللہ وہ آزادی لے کے رہیں گے. اینڈ اف یو کانٹ بیٹ دیم, ایک لفظ کہوں گی, نہیں ایک لفظ کہوں گی, وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ریسنٹلی کہا کہ اگر بائیڈن کی کال آتی ہے تب بھی شکریہ, بائیڈن کی کال نہیں آتی ہے تب بھی شکریہ. بہت اچھا, اس طرح وہ کریں گے. ہمبل انسان ہے, اسی لیے تو کپڑے بیچ کے مطلب اور ان کے پسینے سے پاکستان کی خوشبو بھی آتی ہے. میں بس جلدی بتا دوں, اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. آئی اسٹینڈ ود امپورٹڈ حکومت. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी आज हम आपके लिए एक ऐसा नया सेगमेंट लेकर आए हैं जो कि आपको यकीनन ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसे अपने मुल्क के बारे में मालूमात जो है वो फराहम करेगा जो हम बचपन में किताबों में तो पढ़ते आए हैं, लेकिन बचपन के साथ वो चीज़ें हम जो है जब जवानी में पहुंचते हैं तो वो भूल ही जाते हैं। हमने रट्टा मारा हुआ था। एग्जैक्टली लेकिन अब आपने जो है वो घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसा सेगमेंट लेकर आए हैं जहां ना सिर्फ आपको अपने मुल्क के बारे में मजीद जो है वो मालूमात मिलेगी, बल्कि बच्चों की जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बच्चों को भी जो है वो इसमें शामिल किया जाए। बच्चों को रट्टा मारने में प्रॉब्लम है, तो अगर हम बच्चों को बताएंगे कि आपके पाकिस्तान की सकाफत क्या है या आपके पाकिस्तान की कौमी चीजें क्या है, तो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। वाह, वाह, वाह। सबसे पहले मैं ही अपने से आगाज जी, करती हूँ। मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान की अगर मस्जिद के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की कौमी मस्जिद जो है वो फैसल मस्जिद है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। वाओ, रियली नाइस। एंड आई एम श्योर बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एंगेज्ड फील करेंगे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट की चीज़ है ये और इनको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक नॉलेज है। मैं यहाँ पे एक जो ब्रेक करूंगी चीज़, आई एम श्योर आप लोग भी अपने नेशनल जो फैक्ट्स हैं वो रिवील करेंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पे बताऊंगी वो ये बताऊंगी जो कि बहुत बचपन से ही मुझे जिस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी वो मुझे बहुत बाद में आके पता चला कि जो हमारे नेशनल शायर हैं, पोइट है, वो इलामा इकबाल है। इसीलिए हम उनकी माशाल्लाह। शायरी में देखें तो बहुत रेवोल्यूशनरी होती जी। है और काफ़ी सोलफुल होती है। उस ख्वाब की वजह से पाकिस्तान। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा कह ऐसा ही सकते है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सेगमेंट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग बचपन में वापस आ गए हैं। मतलब हम लोग बचपन ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद करते थे, अब भूल गए, अब दोबारा से जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। नेशनल एनिमल की अगर बात कर लें तो हमारा नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है। यस ट्रू। एंड वो जंप मारता है, इफ यू हैव सीन द वीडियोस, वो जी। पहाड़ से जंप मार के नीचे उतरता है, जंपिंग फ्रॉम वन लाइक अ पिंग पोंग बॉल। बहुत Yes, खतरनाक जानवर है। distinctive species. यस। एंड जैसे सना जी ने कहा कि हमने अपने शो में बड़ी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को शामिल किया बहुत जाए। ज्यादा। हमने 2 बच्चों को किया था, वो टेबल की जान नहीं छोड़ रहे थे, उतर नहीं रहे थे, फिर हमें उनको साइड पे करना पड़ा। हम सिर्फ बताएंगे बच्चों के लिए, आप बच्चे घर में बैठ के सुने। मैं आपको बताने लगा हूं हमारा नेशनल मोटो क्या है। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जी। एग्जैक्टली। वाओ, सीरियसली ये तो पाकिस्तान की सकाफत है। ये है पाकिस्तान की नेशनल जो है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, जो बता रहे हैं नेशनल चीज़ें, नेशनल आइटम कह सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का अगर हम कौमी जूस की बात करें या हम मशरूब की बात करें कि हमारा पाकिस्तानी मशरूब जो है वो कौमी मशरूब कौन सा है, तो वो है जी गन्ने का जूस। वाह 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 वाह। शुगर केन। चले जी, इसी से रिलेट करता हुआ मैं भी ले आती हूँ जी, नेशनल फ्रूट जो है वो क्या है? मैंगो। और अगर फ्रूट की बात हो रही है तो वी कैन फॉरगेट द वेजिटेबल्स। तो अगर मैं सब्जी की बात करूं तो हमारे यहाँ पे औरतें बड़ी मशहूर है, तो फिर लेडी फिंगर ही होनी चाहिए हमारी नेशनल वाह, सब्जी, वाह, और वो ही है भिंडी। वाह, वाह। सीरियसली? भिंडी हमारी Oh, नेशनल wow. वेजिटेबल है। एंड अगर वेजिटेबल्स की बात हुई है, खाने पीने की बात हो रही है, तो मैं बताता हूँ हमारा नेशनल स्वीट क्या है। गुलाब जामुन। वाओ, यमी, डिलिशियस। जहाँ गुलाब जामुन की बात हो रही है तो वहाँ फ्लावर को हम कैसे भूल सकते हैं? तो जी। हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो जैस्मीन है, मतलब चमेली। और अगर हम पाकिस्तान के पहाड़ों की बात करें या पहाड़ की बात करें तो हमारा नेशनल माउंटेन जो है वो है K2। बिल्कुल सना, जैसे कि आप ऊंचाइयों की बात कर रही हैं, तो मेरे पास भी ऊंचाइयों से रिलेट करती हुई ही एक बात है कि नेशनल एयरलाइन जो है वो हमारी कौन सी है? PIA। हवा की बात हो रही है तो समुद्र की बात होनी जी, चाहिए। जी। हमारा जो नेशनल रिवर है वो है इंडस रिवर। जी। वाह। और अगर रिवर वाह। की बात हो रही है तो ग्रीनरी पे जाते हुए हम ट्रीज को कैसे भूल सकते हैं? अगर हम ट्रीज की बात करते हैं तो हमारा जो नेशनल ट्री है वो है डियोडर ट्री। मैं आपको बताऊं जी कि हमारा नेशनल रेप्टाइल जो है वो है जी इंडस क्रोकोडाइल। वाह, वाह, देखिए वाह, मैं आपको बताऊं, जानवर की बात हो रही है जी। तो मैं भी जल्दी से बता दूं कि जो हमारा नेशनल प्रीडेटर है वो है स्नो लेपर्ड। जी यूनुस, यहाँ पर जानवरों की बात हो रही है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। और मेरे पास जो जानवर है वो है फिश। नेशनल फिश की अगर बात की जाए तो वो है मासीर। नाइस, टेस्टी भी है। यस। तो अगर आपने टेस्टी की बात की तो मैं आपको दोबारा से याद करवा दूं कि अगर टेस्टी डिशेस की बात करें तो जो हमारी नेशनल फूड बनती है वो है निहारी। नाइस, टेस्टी। अच्छा, इस दिन को तो कोई भी फरामोश नहीं कर सकता कि हमारा कौमी दिन कौन सा है। 14 अगस्त। एग्जैक्टली, हमारा जो कौमी दिन है वो है हमारी आजादी का दिन, यानी कि 14 अगस्त। और मैं आपको बता दूं नेशनल सिंबल क्या है हमारा? चांद सितारा। यस, हमने बांटे थे क्या एक दूसरे के? और मैं आपको बताऊं कि नेशनल कलर क्या है हमारा? हरा। अगर नेशनल स्पोर्ट्स की बात की जाए तो वो है हॉकी। देखें वही वाली बात है, हॉकी जो है उससे गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान ने, पाकिस्तान जी। का नाम हुआ। लेकिन डू यू नो दैट द नेशनल लीडर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, आपके कायद वो इंटरनेशनल लीडर है। नेशनल लीडर जो है वो है कायदे आजम मोहम्मद अली जी, जिन्ना जी, साहब।
May God bless his soul. आमीन, उनकी वजह आमीन। से ये मुल्क है. जी और नेशनल ड्रेस हमारा शलवार कमीज है। Yes. और नेशनल जबान हमारी उर्दू है। सो हमारा नेशनल बर्ड है चकोर। Nice. Yes, और हमारा नेशनल म्यूजियम है मज़ार कायद। और हमारी नेशनल लाइब्रेरी है कौमी कुतुबखाना पाकिस्तान। Nice. बट क्या आप लोगों को पता है कि हमारा नेशनल क्रश, नेशनल ऑब्सेशन क्या है? प्लीज Yes. आप ये मत कहिएगा कि शेख रशीद कोई साहब है। पॉलिटिशियन नहीं है। Okay. इट्स ऑन आवर फिंगर टिप्स। 3, 2, 1 सोशल मीडिया। Oh, nice. एंटरटेनमेंट इज आवर ऑब्सेशन। Yes, yes, and I just want to say कि break का time हो गया. Just one जी. last thing. Did you know that the national rock star of Pakistan, that is Yunus Yunus Khan. Khan. मिलते हैं छोटे से break के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे वक्त है हमारे एक इंटरेस्टिंग से सेगमेंट का जिसका नाम यूनिस ने रखा हुआ है कि दस्ती फैक्ट्स। और बगैर ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं अपने इस सेगमेंट की जानिब। और पहला फैक्ट हमारे साथ जो शेयर करेंगे वो यूनिस करेंगे। Yes. यूनिस, ऑल ओवर टू यू। Yes, yes. पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं. Did you know कि सबसे खतरनाक आंट, मैं फुप्पो की बात नहीं कर रहा, आंट की बात नहीं कर रहा, एंट, चुंटी। चुंटी की बात कर रहा हूं. उसका नाम है बुलडॉग एंट. हाँ। और सिंस 1936 3 लोग मार चुकी है. एक चुंटी के काटने से बंदा मर सकता है, तो बी केयरफुल. बुलडॉग एंट से दूर रहें. ठीक है. आई एम पासिंग द बॉल टू उर्शिया जी. थैंक यू यूनिस जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है, जैसे कि आपकी स्किन टैन हो जाती है, गर्मियाँ हैं तो आप धूप में निकलते हैं तो बहुत ज्यादा एक साइड काली हो रही होती है और एक साइड वाइट हो रही होती है, तो साबुन है ना आपको उसके लिए. नहीं एक नहीं side पे हाँ नहीं मतलब मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, जी. हमने आपको टिप भी है और ये फैक्ट भी है कि आपको दही के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है, उसके बाद आपको 20 मिनट्स तक फेस पे अप्लाई करना है, या जहाँ पर भी आपकी स्किन टैन हो रही है तो 20 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लें तो आपकी स्किन नॉर्मल हो गोरे हो जाएगी. जाएंगे. या ऑलराइट, प्लीज पास द बॉल. टू सना. थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो है जी कि ज़राफ़ा एक ऐसा जानवर है जो कि कभी बोलता नहीं है, आवाज़ नहीं होती उसकी। You're talking about zebra. Oh, sorry. Giraffe. जी, जी, Yeah. जी। It has no voice. Giraffe has no कभी नहीं voice. बोलता वो। Oh, wow, wow. Please pass the ball. अनम। I guess some people has this feature too. Okay, anyways, so my fact is कि हम जो कॉटन कैंडी खाते हैं, जैसे कि अभी मेरे कपड़े बहुत पिंक लग रहे हैं, ऐसी पिंक सी कॉटन कैंडी जो लच्छा कहलाता है इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, तो वो डेंटिस्ट ने इन्वेंट की थी कॉटन कैंडी. ये कस्टमर बनाने के लिए इन्होंने इन्वेंट किया. I'm telling you. But how cool is that? Please pass the ball. To you. All right. ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं. अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, और अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो वाह. ये जो शख्स है ये 1400 पाउंड्स का है और इनका नाम जो है जॉन ब्रावर मिनाच है. द हैवीएस्ट ह्यूमन एवर रिकॉर्डेड. बहुत भारी चल रहा बंदा, भारी आ रहा, हल्का नहीं आ रहा. आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी. थैंक यू सो मच यूनस। मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो सो रहा है, मतलब हर वक्त ही वो जो है वो गश्त की हालत में होता है या उसे नींद आ रही होती है, तो इसका मतलब वो इंसान बहुत उदास है. नाइस. प्लीज पास द बॉल. प्लीज. So my fact is कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है जिसमें आप अपने पिंकी फिंगर को खो देते हैं, तो आप अपने हाथ की 5% स्ट्रेंथ खो देंगे. 5%? ओनली Exactly, 5%. exactly. Okay. कतरा कतरा दरिया बनता है, सो ये थोड़ी 5% बहुत कहने में लीस्ट मिनिमम जी, बहुत है ये. बट स्टिल इट डज मैटर. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अगर आप लोगों की इजाज़त हो. ये वाकई में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर आपके पूरे शॉपर, अगर मैंने लेट सपोज मैंने शॉपर इसमें अगर मैंने हैंग किए हुए हैं तो ये बहुत अच्छे से होल्ड कर सकती है. बहुत इसमें हाँ, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत होती है. शॉपर उठाती हैं. नहीं जैसे कि अगर आप ग्रोसरीज के लिए जाते हैं तो लेट सपोज अगर इसमें मेरा एक शॉपर फंस भी गया है ना, तो ये बहुत जल्दी इसको कैरी कर लेगी. बट हम टैंगल हाँ. करते हैं, एक शॉपर इसमें दूसरा हाँ, इसमें, हाँ, तो हाँ. मतलब हर फिंगर की अपनी एक इक्वल True. इम्पोर्टेंस है और अच्छा. सब अपना मिला के बहुत वो जैसे कि हर चीज यूनाइट हो जाती है तो ज्यादा true, ताकतवर हो जाती है. सो प्लीज पास द बॉल. टू उर्शिया. थैंक यू अनम. और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको ज़िंदगी में अकेले रहने की यानी कि आदत हो गई है, चाहे वो आपको सिनेमा हॉल जाना है, रेस्टोरेंट जाना है, तो आप पूरी ज़िंदगी अकेले गुजार सकते हैं. आपको किसी की इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ना, हाँ, ऐसे ही है यूनिस. सोशल एनिमल तो है इंसान, कंपेनियन भी. या इट डज मैटर. यूनिस, अगर जिंदगी में अगर आपको आदत पड़ गई है ना, आप सिनेमा हॉल भी अकेले जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको अकेले रहने की आदत हो जाएगी.
ٹھیک ہے بٹ اٹس ناٹ اے گڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے, واٹ از دس بیہیویئر؟ تو پلیز ٹرائی ٹو منگل ود پیپل. غلط لوگوں میں بیٹھنے سے بہتر ہے آپ اکیلے بیٹھیں. اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں. ہاں, پلیز پاس دا بال ٹو یو. alright. میرا جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ یہ ہے کہ دستی فیکٹس کا ٹائم ختم ہوتا ہے, سستی ڈرل کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آپ لوگوں سے ڈرل پوچھی گئی تھی, وہ کون ہے, کیا ہے جو فرانس کی دلہن ہے؟ Any guesses? Exactly, capital of France. Yes. اور بہت سارے لوگوں نے جواب دیا آنسر از بائی عقیل. نام یوزر نیم عقیل لیٹ ہے. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے, اپنا پرائز لیجیے. آپ لوگوں سے ریڈل پوچھ رہا ہوں. جی نہیں, میں پوچھوں گی آپ لوگوں سے ریڈل. چلے آپ پوچھیے. جی the riddle for today is what kind of a room has no walls or no corners? ایسا کون سا روم ہے جس کے نہ تو کارنرز ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی والز ہوتی ہیں؟ سو تھنک ناؤ. کسی غریب کا روم ہے؟ نو, اس میں بھی بیکاز روم کیسا بھی ہو, امیر کا غریب کا, برکس تو لگیں گی نا. ہوم لیس. نو, اٹس ناٹ دا رائٹ آنسر. اچھا, which room has no walls? No walls and no corners. What is it? Perfume. How? I don't know. Very irrelevant answer. Please answer. Shall I tell the answer? جی آپ پلیز دونوں بتا دیں. give up. A mushroom. Okay. ٹھیک ہے, اچھا تھا بہت. بہت اچھا. آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, جی وہ کون سی رنگ ہے جس کو فنگر میں یوز نہیں کی جا سکتی؟ کیا پہن نہیں سکتے فنگر میں؟ بہت ساری رنگ ہیں ایسے. یہ عوام سے سوال ہے, ٹھیک ہے, تو عوام سے جواب ہم چاہیں گے کہ عوام ہی جواب دیں. تو اگر آپ اس کا آنسر جانتے ہیں تو اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے نا, اپنا پرائز لیجئے نا. سستی ریڈل کا بھی ٹائم ختم ہوتا ہے, پوئٹری کا ٹائم شروع ہوتا ہے. A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, ثنا قادر. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, جس طرح سے آپ سیریسلی میری شاعری کو پسند کر رہے ہیں. آج جو میرے پاس شاعری ہے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی, تو پلیز ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. میری چاہت کی بہت لمبی سزا دو مجھ کو, واہ کرب تنہائی میں جینے کی دعا دو مجھ کو. واہ. فن تمہارا تو کسی اور سے منسوب ہوا, ہائے ہائے, کوئی میری ہی غزل آ کر سنا دو مجھ کو. واہ. حال بے حال ہے, تاریخ ہے مستقبل بھی, واہ. بن پڑے تم سے ماضی میرا لا دو مجھ کو. واہ. آخری شمع ہوں میں بزم وفا کی لوگو, واہ. چاہے جلنے دو چاہے بجھا دو مجھ کو. واہ. خود کو رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں میں شاید, واہ. خود کو رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں میں شاید, تم میری ذات سے ایک بار ملا دو مجھ کو. بیوٹیفل, ویری نائس. یہ جو انڈائریکٹ میسجز جا رہے نہیں, بٹ بیوٹیفل, Thank you, ویری very nice. بیوٹیفل. بہت اچھا ڈیلیور کرتی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ تو ایک پوئٹری کا خزانہ ہے. جب ہمارے پاس بھی پوئٹری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں ثنا جی کچھ ریفر کیجیے, تو یہ ریفر کرتی ہیں, اینڈ ماشاءاللہ سے بہت بیوٹیفل پیس آف آرٹ. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت. میں بھی کر دوں تعریف. جی کیجیے. بہت خوبصورت شاعری کی ادائیگی کی آپ نے. اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل پارٹ وین شی ڈز دا شاعری از, ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت اٹریکٹ اور کنیکٹ کرتی ہے, کہ یہ بہت ڈوب جاتی ہیں اور یہ دل سے کرتی ہیں, اس چیز کو محسوس کر رہی ہوتی ہیں. مین وائل ہم بس دیکھ کے ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, مطلب جو اگر میں دیکھوں آج کل, لیکن اگر شاعری اصل وہی ہے جو آپ خود محسوس کرو گے تو ہی سامنے والا اس چیز کو فیل کر پائے گا. سو دیٹس ریئلی بیوٹیفل. بڑی ہارٹ بروکن پوئٹریز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, محبت والی جو کیا کہتے ہیں نا, کہ آپ جو شاعری لاتی ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے, اور وہ واقعی میں ڈیپلی جو ہے آپ ہی اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. نہیں, میں بھی کرتی ہوں الحمدللہ. نہیں, آپ لوگ سبھی بہت زیادہ اچھا کرتے ہیں. سیریسلی آپ لوگ بہت اچھا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے اور فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دل سے بول رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ دل تک پہنچتی ہے. تو زندگی میں جو بھی کام کرے وہ دل سے کرے, اور کبھی کبھی دماغ سے بھی کر لینے, کبھی کبھی دماغ سے کیا کرے, ورنہ پھر آپ بھی شاعری میں ڈوب کر کسی شاعر سے کم نہیں ہوں گے. خیر, ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, اور اسی طرح سے کچھ نئی شاعری کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Take care peeps.